Good morning, students. I am Rupa Saxena from Panchsheel Balak Inter College. This is part 3 video of Science, Class 7th, Lesson 3, Fiber to Fabric. In the last video, you have studied about the processing of fibers into wool. Wool processing हमने पढ़ लिया था. Now in this video, we will study about silk, the next fiber. Wool fiber हमने पढ़ लिया है. अब हमें पढ़ना है silk fiber. Silk. Silk, you know that we get silk by silkworm. Silk fibers are also animal fibers. Silkworm spin the silk fiber. Silkworm से ही हमको silk fibers मिलते हैं. और जैसे हमने rearing की थी sheep की, बिल्कुल वैसे ही silkworm की भी rearing की जाती है. और rearing of silkworm हम कहते हैं sericulture. Rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. सिल्क वर्म्स को पालना सिल्क के प्रोडक्शन के लिए या सिल्क बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर. अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमें सिल्क फाइबर कैसे प्रोसेस किया जाता है, उसको हमें कैसे मिलता है. लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम उसकी लाइफ हिस्ट्री समझेंगे कि सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री क्या है. ये डायग्राम बना हुआ है आपके लाइफ हिस्ट्री का. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. मेल सिल्क मॉथ और फीमेल सिल्क मॉथ, ठीक है, ये एडल्ट सिल्क मॉथ है. ये प्रोड्यूस करते हैं एग्स ऑन मलबरी लीव्स. ये मलबरी लीव्स ही इनका फूड होती हैं और वही मलबरी लीव्स पर ये अपने एग देते हैं. ये एग डेवलप होते हैं कैटरपिलर में. कैटरपिलर से ये फर्दर डेवलप होते हैं. जो कैटरपिलर है ये फिर अपने हेड को स्विंग करता है 8 वाले डायरेक्शन में और इसके आसपास रिलीज होता है सिल्क फाइबर. ये अपनी पूरी बॉडी को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है. इस स्टेज को हम कहते हैं कोकून. कोकून के अंदर जो वर्म होता है वो डेवलप करता रहता है और फिर एक स्टेज आती है जब ये कोकून ब्रेक होकर के और यंग मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है. सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल को समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं. The life of a silkworm starts when a female moth lays eggs on mulberry leaves. After some time, these eggs hatch into larvae. Now, what are these larvae known as? Any guesses? Right. These larvae are known as caterpillars or silkworms. Slowly, these caterpillars grow in size by feeding only on the mulberry leaves. The next stage in the life cycle of a silkworm is pupa. When the caterpillar has grown large enough, it starts weaving a net around itself so that it can easily hold itself in that net. It now secretes a fiber made of protein, which solidifies and hardens when exposed to air for some duration of time. This is known as the silk fiber. Caterpillars continue to spin silk fiber till they get completely covered by them. This silk covering in which a silkworm covers itself is known as a cocoon. Further development of silkworm takes place inside the cocoon. After some time, the pupa enters the adult stage and emerges out of the cocoon as a moth. The entire process thus continues and is known as the life cycle of a silkworm. So, you have seen the video of life cycle of silk moth. So, you must be now getting that हमें silk fiber कैसे obtain होते हैं उसके cocoon से. Now, we have to study that how silk fiber from cocoon we are getting to make silk clothes. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread. अभी हमको सिल्क थ्रेड के लिए cocoons को कलेक्ट करना है. तो सबसे पहले हम रेयर करेंगे सिल्क वर्म को. अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम. जो आपने लाइफ साइकिल में देखा था वही प्रोसेस है, उसको हम थोड़ा सा लेंगे तब हमें पता लगेगा कि कैसे वो सिल्क फाइबर में देन कन्वर्ट हो रहा है. तो जैसे वो उसने एग्स लेके एक टाइम में बहुत हंड्रेड्स ऑफ एग्स एक टाइम में प्रोड्यूस करती है. इन एग्स को फिर हम स्टोर करेंगे केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लोथ्स और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स. इन एग्स को जो सिल्कवॉर्म रियर करते हैं, है ना, उनको हम
दे देते हैं क्योंकि उन्हें सिल्क का प्रोडक्शन करना है. The farmers keep eggs under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity. The eggs are warmed. Eggs को थोड़ा सा वार्म किया जाता है एक सुटेबल टेम्परेचर तक ताकि लार्वा जो है उन एग्स को हैच कर ले. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. ये सारा कुछ मल क्योंकि उनका जो सिल्क वर्म उनका जो फूड है वो मलबेरी लीव्स है तो ये सब उन्हीं के लीव्स पर होता है. The larvae called caterpillars or silkworms eat day and night and increase enormously in size. लीव पर वो ग्रो करता रहता है और साइज में बढ़ता रहता है. देन क्या होता है, अब ये साइज में बढ़ गया. देन लार्वों को रखा जाता है एक बैम्बू ट्रे में. ये हम प्रोडक्शन पढ़ लाइफ साइकिल हम पढ़ चुके हैं. अब हम ये प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन कैसे होता है. लार्वों को रखा जाता है बैम्बू ट्रे में जिसमें मलबेरी लीव्स पहले से रखी होती हैं और उनको 25 से 30 डेज के लिए छोड़ देते ताकि वो मतलब खाते रहें और ग्रो करते रहें. फिर क्या करता है 25 से 30 डेज के बाद जो कैटरपिलर है वो ईट करना स्टॉप कर देता है और एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू. और बैम्बू में ही एक छोटा सा चैम्बर मतलब बैम्बू स्ट्रिप है उसी में ही एक चैम्बर में वो क्या करता है स्पिन कोकून. हमें पता है ना कि वो कब वो कोकून स्पिन करेगा. तो जब वो उस स्टेज पे आता है तो वो कोकून बनाने लग जाता है यानी कि सिल्क फाइबर सिक्रीट करने लग जाता है. ये सिल्क फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं. स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून गेट्स अटैच्ड. कुछ ट्रेस कुछ ट्विग छोटी छोटी सी डंडियां वो रखी होती है ताकि उन सिल्क फाइबर को अटैच होने में आसानी हो. The caterpillar or silkworm spin the cocoons inside which develops the silk moth. cocoon के अंदर silk moth develop होता रहता है. अब silk की processing. A pile of cocoons is used for obtaining silk fiber. अब cocoons के बहुत सारे पाइल एक ढेर सा ले लिया जाता है ताकि हमको silk fiber मिल सके. इन cocoons को हम sun में या बॉइलिंग के लिए हम बॉइल कर देते हैं या स्टीम में एक्सपोज करते हैं. तो क्या होता है सिल्क फाइबर सेपरेट आउट हो जाता है और जो उसका वर्म होता है वो डेड हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. जब हमने सिल्क निकाल लिया कोकून के अंदर से है ना तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग. Reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from cocoon. Cocoon से silk fiber को separate कर देता है. Silk fibers are then spun into silk threads. अब हमको silk fiber मिल गए. अब threads बनाने का process हमको पता है कि by twisting, by using machines we can make threads which are woven into silk cloth by sweater. अब हमें क्योंकि हमने जो क्लास 6 में हमने जो प्रोसेस पढ़ा था ना कि पहले हमको फाइबर्स के अंदर ट्विस्टिंग करके स्पिनिंग से हम उनकी वीविंग करके हम क्या बना लेते हैं फैब्रिक. उसी तरह से सिल्क का भी होता है कि सिल्क के हमको फाइबर्स मिल गए. फाइबर से हमने स्पिनिंग करी उनको सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट किया एंड देन सिल्क थ्रेड को हमने वीविंग कर लिया ताकि सिल्क क्लोथ्स बनाया कर. तो ये है पूरा प्रोसेस सिल्क प्रोडक्शन का. और सिल्क बहुत सारी टाइप का आता है टसर सिल्क मूंगा सिल्क. वो अलग अलग मॉथ की स्पीशीज पर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से मॉथ है आपको. और सिल्क का जो क्लॉथ है वो इसीलिए एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि वर्म होता है छोटा सा. ठीक है वो ककून जितना भी सिक्रीट करेगा बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है. बट हमारी साड़ी कितनी लंबी लंबी होती है ना स्टोल लंबे होते हैं तो इसलिए वो ज्यादा चाहिए होता है. तो इसीलिए जो अगर सिल्क वॉर्म एक बार में हंड्रेड्स ऑफ एग दे रहा है तो जो फार्मर है वो उन सारे एग्स में से कोकून को कलेक्ट करना उनसे फाइबर्स को निकालना दैट टेक्स सो मच एक्सपेंस. तो इसीलिए सिल्क के कपड़े हमें एक्सपेंसिव भी मिलते हैं. सो क्लास दिस वाज द चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है ओके थैंक यू क्लास.